So, hello guys, कैसे हो सब लोग? Welcome to our series of how to score 99 percentile in LRDA. We have started this series in Quant. We have done with 2 lectures. Now we'll start with LRDA. In this series, we'll be covering each topics that are coming more and more in CAT, depending upon the previous trends, how they are going. And we'll be covering all the PYQs and the tricks so that you'll be able to solve the sets a little faster, because in this year CAT, as you can see, there were not 4 but 5 LRDS sets, so you'll have to increase the speed. That's why I'm going to take this series, so you'll be able to unlock those things of how to imagine the problems and all. So the first lesson that in this series will be going to start, that would be puzzles. And why puzzles? Let's know. So the reason why puzzles is right in front of you. As you could all see, these are the all previous trends of CAT LRDS sets from puzzles. As you can see, in 2024 there were nearly 10 questions that have been asked. 10 questions means there were at least 2 sets which were asked. 2 sets, that means the probability of having this in your set is 2 by 3, which is really high. In 2023 it was same. There were 10 questions asked. In 2022 there were 12, and 2021 there were 8. So the probability of it coming in 2025 are really high. So that's why we'll be covering the puzzle questions. Okay, so shall we start with the questions? So we'll be starting with questions from 2024 till 2023. Okay, in this video we'll be covering 2024 and 2023 PYQs. So let's start with the first PYQ of 2024 which I have been asked. This was the question which was asked in 2024 slot 2. So let's see what this question is all about. Okay, so 8 gymnast players number from 1 to 8 underwent a training camp where they were coached by 3 coaches X, Y, Z. Okay, तो 8 players थे gymnast players and there were 3 coaches X, Y, Z. Okay, each coach train at least 2 players. So X, Y, Z की minimum value कितनी है? 2. लिख लेते हैं, चलो X, Y, Z is at least 2 players. So at least 2 is greater than or equal to 2. Okay, so Yuki trained only number players. Okay, so the Y trainer which was there, he has only trained even number players. So even number from 1 to 8 are 2, 4, 6 and 8. Next, while Zara trained only odd number players. Okay, so Zara would be 1, 3, 5, 7. We right now don't know about the X, so we'll see how it goes. So after the camp, the coach evaluated the players and gave integer ratings to the respective players trained by them on a scale of 1 to 7. So एक point system बाद में उन्होंने दी है जो कि 1 से 7 में है, 1 lowest और 7 highest. Okay, so let's go to the points. The first point that they have given is Zena trained more players than Yuki, so that means X is greater than Y. Let's just keep it for now. It's not the point that we could start something from. Okay, next, player 1 and 4 were trained by same coach. Okay, here's something tricky, because as you see, 1 is an odd number while 4 is an even number, and we know Y has only trained even and Z has only trained odds. So the coach who had been trained first and fourth would be none other than X, because ये देखो ना, Y में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 2, 4, 6, 8. Z में कौन कौन सी वो पॉसिबिलिटी है? 1, 3, 5, 7. 1 और 4 दोनों में कॉमन नहीं है. दैट्स वाई X इज द वन हु ट्रेन प्लेयर 1 एंड प्लेयर 4. तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट. आगे क्या दिया है? While the coaches who trained player 2, 3 and 5 were all different. तो ये सेकंड पॉइंट मिल गया अपने को कि P2, P3 एंड P5 आर ऑल डिफरेंट. दैट मीन्स एक्स वाई जेड में से कोई एक रहेगा. एंड यू कुड सी हियर क्लियरली कि 3 और 5 है और 3 और 5 दोनों ऑड है. तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई तो चेंज होगा, बिकॉज P2 क्लियरली अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि P2 Y में था, बिकॉज ओनली इवन नंबर्स लेता है ना Y. सो Y वुड टेक P2 एंड P3 और P5 का फिलहाल के लिए पता नहीं है. सो लेट्स जस्ट कीप इट रैंडम और आगे के पॉइंट्स देखते हैं. नेक्स्ट, player P5 and P7 were trained by the same coach. Okay, here's a point.
एंड गॉट द सेम रेटिंग। चलो सिर्फ यहाँ तक पहले देख लेते हैं कि दे वर ट्रेन बाय सेम कोच। सो P5 और P7 इक्वल है पहले तो, और दोनों सेम कोचेस से। अभी जस्ट एक सेकंड के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे P5 को ट्रेन करा होगा X ने, तो अगर P5 को X ने ट्रेन करा होगा तो P7 को भी X ने ट्रेन करा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 5 और 7 दोनों इधर आएंगे, लेकिन अगर 5 और 7 आ गए तो यहाँ से फिर क्या बचेगा 3, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट लाइन ओनली अपने को गिवन क्या थी कि XYZ मिनिमम 2 प्लेयर्स है। दैट्स वाई 5X को ट्रेन नहीं कर सकता, तो 5 को ट्रेन कौन करेगा, Z, और 3 को ट्रेन कौन करेगा फिर X। सो दैट्स वाई 3 गोज हियर, तो 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा और 5 और 7 यहां पे रहेंगे। ओके, एंड वी नो P5 इज इक्वल टू P7। चलो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। रफली हमारा डेटा कैलकुलेट होते जा रहा है यहाँ पे आधा। ऑल अदर गॉट अ यूनिक रेटिंग, तो ओके P5 और P7 वेयर द ओनली प्लेयर्स हु गॉट सेम रेटिंग, एंड अदर देन दैट बाकी सारे लोगों को, मतलब टोटल 8 लोग थे, 8 में से 2 लोगों को एक वैल्यू है और बचे हुए 6 सारे यूनिक है। ओके, नाउ द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ ऑल द प्लेयर्स वाज 4। तो P1 से लेके P8 का एवरेज कितना है 4, तो P1 से लेके P8 तक का सम क्या हो जाएगा, P8 बाय 4 इक्वल टू 4 होगा ना, तो 8 इंटू 4 32। ये सिर्फ रखेंगे, इससे आई गेस अपने को कोई क्लू मिल जाएगा। प्लेयर टू गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, सो हाईएस्ट रेटिंग क्या है अपने पास 7। द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन बाय यूकी, चलो यूकी का एवरेज was twice that of the players trained by Zena. Okay, so twice of X का average, and second point क्या है, and 2 more than that of player trained by Zara. So okay, second point क्या है कि Y average is 2 plus Z का average. Now player 4 rating was double of player 8 and less than player 5. मतलब प्लेयर 4 की रेटिंग जो भी थी वो डबल थी किससे, P8 के, और P4 जो था वो लेस देन था P5। अभी यहाँ पे बहुत क्लमजी हो रहा है, सो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सारे पॉइंट्स क्लियरली लिख देते हैं, सो क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। ओके, सो करंटली वी नो कि X जो है वो किसको ट्रेन कर रहा है, 1 3 4, राइट। Y किसको ट्रेन कर रहा है, 2 6 8। Z किसको ट्रेन कर रहा है, 5 एंड 7। ओके, Z का तो फिक्स है। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि X इज ग्रेटर देन Y, एंड वी नो 2 इज कंफर्म Y में है बिकॉज गिवन था सेकंड पॉइंट में दैट P2 P3 P5 वे ट्रेन बाय डिफरेंट, और वहां से अपने को पता चल गया था कि Y को ट्रेन 2 ने करा है कंफर्म। तो फॉर दिस टू बी मोर देन ये, इसमें क्या होगा कि 6 और 8 में से कोई एक यहाँ पे होगा, 6 और 8 में से जो वहां पे नहीं होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब 8/6, और वहां पे 6 होगा तो यहाँ पे 8 होगा, वहां पे 8 होगा तो यहाँ पे 6। ओके, और Z का 5 और 7। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या मिला था लास्ट स्लाइड से कि P8 तक का सम 32 है। तो ओके, अभी ये देखिए कि P1 प्लस से लेके P8 32 है। नाउ वी नो कि सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है एक्सेप्ट फॉर 1 बिकॉज P3 और P5 इक्वल है। सो कैन वी राइट कि ऐसा P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 P5, ये सिर्फ मैं तुम लोगों के विजुअलाइजेशन के लिए लिख रहा हूँ। P6 P7 P8 इज इक्वल टू 32। वी नो P5 और P7 सेम है, तो चलो एक सेकंड के लिए इसको साइड में रख लेते हैं। तो बचे हुए 7 क्या है, सारे यूनिक है। यूनिक वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 to 7। सो 1 to 7 का सम क्या होता है, विल कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ n plus 1/2। ये सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला रहता है। सो विद दिस फॉर्मूला विल गेट द सम ऑफ 1 to 7, दैट इज 7 into 8 divided by 2, ये 4 ज़ा 28 आ गया। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 28 plus P7 is equal to 32। That gives P7 is equal to 4। तो हमको P7 की वैल्यू मिल गई, और वी नो P5 is equal to P7 है।
P5 और P7 की वैल्यू मिल गई। हम क्या करते हैं, नीचे एक टेबल बना देते हैं सो दैट विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 and P8. Okay. तो हमको क्या P5 की वैल्यू मिल चुकी है 4, P7 की वैल्यू मिल चुकी है 4। नाउ वी नो वन मोर पॉइंट कि P2 वॉज द हाइएस्ट, सो ये कितना हो जाएगा 7। ओके, नाउ लेट्स चेक कि हम लोगों के पास और क्या क्या पॉइंट्स थे। सो हमने ये पॉइंट कवर कर लिया, हमने इसके बाद और कौन सा पॉइंट कवर कर लिया, एक सेकेंड, पेन बदल देना, कलर येलो। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया, प्लेयर 4 ये हो गया। प्लेयर 5 और 7 हैव द सेम वैल्यू, वो हो गया। पॉइंट 4 हमने कवर कर लिया, 5 कवर कर लिया। नाउ पॉइंट 6 और 7 बचे। पॉइंट 6 और 7 क्या थे, y का एवरेज डबल था x के एवरेज के, और y का एवरेज 2 से ज़्यादा था z के एवरेज, और प्लेयर 4 की रेटिंग प्लेयर 8 के डबल थी और प्लेयर 5 से कम। तो ये दो पॉइंट्स पे अभी काम करते हैं। ओके, सो पहले हम क्या जानते हैं कि इन्होंने क्या दिया है कि प्लेयर 4 की जो रेटिंग है वो ट्वाइस है किसके, प्लेयर 8 के, बट P4 इज लेस देन P5 और P5 की वैल्यू क्या है 4। तो P4 के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है 1, 2 एंड 3, बट एज यू कैन सी P8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P4/2 इज इक्वल टू P8। So the only possible value from 1 to 3 for P4 is 2, because 2 से 2 कट जाएंगे और P8 1 आ जाएगा। So from this we get P4 is equal to 2 and P8 is equal to 1. So ये क्या हो गया यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P4 हो गया 2 और P8 आ गया 1। now एक लास्ट पॉइंट था जो हमें बचाता था, शायद उससे हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स चेक। अभी लास्ट पॉइंट क्या था हम लोगों के पास, हम लोगों के पास गिवन था कि जो y का एवरेज है वो 2 से ज़्यादा है z के एवरेज के। अब वी नो z का एवरेज क्या रहेगा, बिकॉज z में क्या थे 5 और 7, और 5 और 7 के पॉइंट्स कितने थे 4 एंड 4, तो z का एवरेज कितना है 4 है, तो 4 + 2 y का एवरेज कितना बन गया 6, तो y का एवरेज 6 बन गया। मतलब y में कौन कौन है, P2 और P6 और P8, राइट, एंड वी नो P2 इज 7 और ये इसका एवरेज 6 है, सो P2 प्लस ये डिवाइड बाय 2 है, तो P2 प्लस P6 P8 क्या हो जाएगा 12, एंड वी नो P2 इज 7, सो इससे क्या हो जाएगा P6 और P8 इज इक्वल टू 5, बट वी हैड कैलकुलेटेड P8 इज इक्वल टू 1। Therefore सेकेंड y किस किस को ट्रेन कर रहा है, y ट्रेन कर रहा है P6 को, और उसके पॉइंट्स कितने गिवन है 5। गॉट इट। मैंने क्या किया कि दोनों को रफली ले लिया, मेरा P8 निकल गया था फिर भी, तो मैंने एवरेज से क्या क्या देखा कि P6 या P8 इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 5 रहेगी, बट वी न्यू कि P8 की वैल्यू 1 है, दैट्स वाई P6 की वैल्यू 5 आ गई। सो P6 की वैल्यू 5 आ गई, तो अभी बची वैल्यू बची है P1 और P3 की, तो 1, 2, सो दिस कुड बी आइदर 3 और 6, 3 और 6, बिकॉज इन दोनों का हमको कुछ ऐसा फ्रैक्शनली गिवन नहीं है। ओके, नो हमको फाइनली क्या क्या मिल चुका है, हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं। ओके, सो एक्स वाई जेड किस किस को ट्रेन कर रहे थे, 1, 3, 4 एंड 8, राइट। z किसको ट्रेन कर रहा था 5 एंड 7, ये किसको ट्रेन कर रहा था 2 एंड 6। ओके, तो चलो, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ प्लेयर्स कोच बाय ज़ारा। तो ज़ारा ने कितने को ट्रेन करा था, P5 और P7, दो एग्जैक्टली हमको पता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 7, 7 की रेटिंग क्या थी, 7 की रेटिंग 4 थी, तो 7 की रेटिंग वाज
4। ये वाइट का कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 6? प्लेयर 6 की रेटिंग हमने कैसे निकाले थे? एवरेज की मदद से निकाले थे। तो प्लेयर 6 की रेटिंग कितनी आ गई थी? 5। सो प्लेयर 6 की रेटिंग 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स द रेटिंग्स कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। तो एक्सेप्ट P1 और P3 के अलावा हम लोगों ने सबकी सर्टन वैल्यू निकाल दिए थे, बस इन दोनों का सर्टन नहीं था तो इसकी वैल्यू 3 और 6 में कंफ्यूज हो रही थी। सो दैट्स वाई सर्टन वैल्यूज कितने प्लेयर्स की निकल पा रही थी? 6, बिकॉज 8 थे, इन दो की नहीं निकल पा रहे तो बचे हुए 6। All were the players trained by Zena. Zena के ट्रेन हमने अभी निकाले थे। Those were 1, 3, 4 and 8. These are the players which were trained by Zena. Okay. Next. चलो ये एक और क्वेश्चन है जो स्लॉट 2 से ही आया था, which was actually easier, but बहुत सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं करा था because they thought कि puzzles वाला है, they thought it might be difficult और उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। Let's see ये कैसा क्वेश्चन है। Okay, so the numbers 1 to 10 are placed in 10 slots of the following grid based on the conditions below. तो ये जो empty spaces है यहाँ पे 1 से लेके 10 तक वैल्यू बिठाया है इन्होंने, और कंडीशंस क्या क्या? लेट्स चेक आउट। तो the first condition that they have given is number in any row appears in an increasing order from left to right. तो लेफ्ट टू राइट से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जब ये जा रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। नंबर इन एनी कॉलम अपीयर इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कॉलम में क्या हो रहा है? टॉप से बॉटम पे डिक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बॉटम से टॉप ये इंक्रीज हो रहा है, राइट? बिकॉज देखो ना कि अगर ऐसे डिक्रीज हो रहा है नीचे जाते हुए तो ऊपर जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट? ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। अभी इस 2 पॉइंट से क्या हम कोई वैल्यू बैठा पा रहे हैं? लेट्स चेक। पहले तो हमारे पास 1 से लेके 10 तक था, तो अभी हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रो से जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, और कॉलम से जब बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे हमें क्लियरली क्या पता चल रहा है कि जो भी हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो रो 1 के एंडिंग में और कॉलम नंबर 4 के टॉप पे रहेगी, बराबर? देखो क्योंकि ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे टॉप वैल्यू कहाँ पे रहेगी? कॉलम 4 पे। तो 10 आ गया यहाँ पे। ओके, तो चलो स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका हमको। अभी नेक्स्ट क्या है कि 1 इज प्लेस आइदर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। तो 1 जो है या तो सेम रो में है, सेम कॉलम पे है। तो अगर 1 सेम रो में रहेगा तो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे, बिकॉज 1 सबसे लोएस्ट है तो वो सबसे स्टार्टिंग में रहेगा रो के, और कॉलम में वो सबसे नीचे रहेगा। क्यों? बिकॉज वो सबसे छोटा है। तो ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या है? नाइदर 2 नॉर 3 इज प्लेस इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि 2 और 3 इज नाइदर इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10। तो ये वाले रो में भी नहीं है 2 और 3, और ना ही ये कॉलम में। तो 2 और 3 कहाँ पे हो सकते हैं? इन तीनों जगहों में से। बट इन तीनों जगहों में क्या प्रॉब्लम है ये देखो। अभी फॉर एग्जांपल रफली हम लोग एक वैल्यू रख के देखते हैं। सपोज कि 2 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे है, कि हमें पता है कि नीचे डिक्रीज होता है। तो अगर हमने यहाँ पे 3 ले लिया तो अभी यहाँ क्या हो रहा है कि नीचे एक डिक्रीजिंग वैल्यू चाहिए। तो 3 के नीचे कोई डिक्रीजिंग वैल्यू है ही नहीं, बिकॉज 1 या तो इधर आ रहा है या तो यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 2 और 3 ऐसे तो नहीं रह सकते। तो 2 और 3 सबसे मिनिमम नंबर है इसके बाद, तो वो कॉलम के एंडिंग में ही होंगे। तो वो कहाँ पे हो सकता है कि 2 यहाँ पे हो सकता है, या तो 2 यहाँ पे हो सकता है, और इसके साथ 3 या तो 3। ओके, एक सेकेंड, अब फिर से बताता हूँ हमने कैसे किया। पहले मुझे रब कर लेने दो। ओके, नाउ सी। अभी हमको क्या पता था? 2 और 3 इन तीनों जगहों में से किसी एक में। तो 2 और 3 में कैसे? 2 और 3 1 के बाद, अभी फ्रॉम लोएस्ट तो अगर हम लोग जाएंगे
तो एज वी कैन सी अगर 1 गया तो 2 और 3 सबसे लोएस्ट है, और कॉलम के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लोएस्ट है, तो ये 2 जहाँ भी 2 और 3 रहेंगे वो कॉलम के लोएस्ट पे रहेंगे। दैट वुड बी या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे, लेकिन 2 ही यहाँ पे रहेगा या 3 यहाँ पे रहेगा ऐसा कंपलसरी हमको तो कुछ बताया नहीं गया कि लाइक यही है एक पोजीशन जहाँ पे सबसे लोएस्ट हो सकता है। जस्ट वी नो कि 2 और 3 यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आगे देखते हैं लेट्स सी कि हमको कुछ डिटेल में पता रहे, बट फिलहाल के लिए वी नो दैट आइदर इन दिस 2 प्लेसेस 2 और 3 इज देयर। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, 7 और 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो, नाइदर 7 और 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और द सेम कॉलम एज 9। तो 7 और 8 है ना, वो 9 के किसी भी यहाँ पे नहीं रखा गया। अभी 9 कहाँ पे आ सकता है बताओ, चलो देखो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो 9 की 2 ही वैल्यूज है। सो 9 कुड बी ओवर हियर और हियर। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, 2 सिचुएशंस ले लेते हैं, बिकॉज अभी एक ही टेबल में बार बार लिखोगे ना बहुत ये हो जाएगा, हमको क्लियरली विजुअलाइज नहीं होगा। सो मैं क्या करता हूँ, 2 टेबल्स ले लेता हूँ। ओके, तो इसमें हम लोग पहले जो वैल्यूज हमको फिक्स पता है वो लिख लेते हैं। दैट इज 10 हमको दोनों सिचुएशन की पता है। 2 और 3 इज ओवर हियर, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, राइट। 1 इज आइदर हियर और हियर, 1 या तो यहाँ पे है या तो हम यहाँ पे है। सपोज करते हैं इस वाले सिचुएशन में कि 9 यहाँ पे, तो अगर 9 यहाँ पे तो 7 8 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो 7 8 कहाँ पे आएगा, 7 8। अभी सपोज करते हैं कि 9 यहाँ पे, अगर 9 यहाँ पे है तो 7 8 इधर नहीं इधर नहीं, तो 7 8 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ओके, तो ये 2 कंडीशंस हो गए, तो ये वाला पॉइंट भी हमने ले लिया। अभी लास्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि 4 and 6 आर प्लेस्ड इन द सेम रो। चलो देखते हैं कि कहाँ पे बैठ सकता है। अभी 4 और 6 जो है वो सेम रो में है। ओके, नाउ लुकिंग एट दिस टेबल 1, लेट्स कॉल दिस टेबल 1 and let's call this table 2. So looking at table 1, there are no 2 spaces in any row. तो 4 और 6 यहाँ पे नहीं हो सकता। अभी रो 2 में देखते हैं कि यहाँ पे 2 एम्प्टी स्पेसेस है। लेट्स ट्राई करते हैं कि यहाँ पे अगर रखें तो क्या हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो चलो 4 और 6 यहाँ पे आ गया, तो 4 और 6 यहाँ पे आ गया, तो 1 यहाँ पे नहीं होगा, तो 1 कहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा। 1 यहाँ पे, 2 और 3 यहाँ पे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। सो इज दिस कंडीशन सेटिस्फाइंग ऑल द केसेस? लेट्स जस्ट क्विकली चेक इट आउट वंस। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट हम लोगों का इंक्रीजिंग है, टॉप टू बॉटम लो होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो 6 के बाद 2 3, 9 के बाद 5, फिर 2 या 3, 10 8 7 1, तो डिक्रीजिंग है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि 10 के या तो रो या तो कॉलम में 1 है, कॉलम में 1 है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ कंडीशन क्या थी हमारी कि जहाँ पे 9 प्लेस्ड है उसके रो और कॉलम में 7 नहीं है, 7 और 8 नहीं रहेंगे। तो 9 यहाँ पे प्लेस्ड है, तो कॉलम नंबर 3 में 7 8 नहीं है, ना ही रो नंबर 1 में 7 और 8 है, तो वो कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इसके बाद जो लास्ट कंडीशन हमको गिवन थी दैट वाज कि 4 और 6 एक सेम रो में होने चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन हमने ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट करके इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करा। सो आवर एंडिंग सॉल्यूशन इज दिस वन। Okay, let's check what were the question that I have been asked. So the first question which was asked was, what is the row number which has the least sum of numbers placed in that row? तो least sum सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? अभी ये देखो 4 6 9 10 2 3 5 8 2 3 7, ये तो तुम देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि सबसे लीस्ट कहाँ पे है, रो 4 में। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement must be true? 10 is placed in a slot in row 1. हाँ 10 यहाँ पे placed था, right? तो first condition satisfy है। and 1 is placed in slot in row 4, right? because जो हमारा solution आया था इसमें क्या था, 1 row 4 में और 10 row 1 में, so that means both are the statements are correct, right? चलो next अभी क्या है, which of the following statement must be true? 2 is placed in a slot in column 2, तो ये बोल रहा है कि 2 यहाँ पे है, और 3 इज प्लेस इन द स्लॉट इन कॉलम 3, और 3 यहाँ पे प्लेस है। लेट्स चेक विद आवर सॉल्यूशन व्हाट वी हैव फाइंड आउट। तो हमें 2 और 3 की
एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई थी। हमें क्या पता था कि अगर 2 यहाँ पे होगा तो 3 यहाँ पे, और अगर 3 यहाँ पे होगा तो 2। और इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन हमको नहीं दी है कि जो हमको बता पाए कि भाई 2 इसमें ही फिक्स है। सो विद दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी वे टू केयरफुल। तुम लोग रश में क्या करोगे, टाइम की वजह से तुम बोलोगे कि भाई 2 और 3 है, इसी इधर इन दोनों में से कहीं पे आ रहा है, लेट्स टेक बोथ 1 एंड 2। और यहाँ पे तुम्हारे 3 मार्क्स कट हो जाएंगे, बिकॉज वी नो 2 और 3 इन्हीं दो प्लेसेस में है, बट वी डोंट नो कन्फर्मली कि 2 ही कॉलम 2 में है, 3 ही कॉलम 3 में है। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी नाइदर 1 नॉर 2। ओके, चलो नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट ऑफ नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। द सेम क्वेश्चन लास्ट में भी, अगर लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया तो ये भी हो जाएगा, बिकॉज 2 और 3, 2 और 3, दिस 2 आर द अनसर्टेनिटीज, दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। नेक्स्ट, चलो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर प्लेस्ड इन कॉलम 4। चलो देख लेते हैं कॉलम 4 में कौन कौन से नंबर्स थे। तो कॉलम 4 में नंबर्स थे 10, 8, 7 and 1. When we sum all these numbers, the sum would be 26. So the last question answer is 26, and the numbers were 10, 8, 7 and 1. Okay, let's go with third slot. Okay, so this is CAT 2023 slot 1 question which I have been asked. This was also from puzzles. So let's check what this question is about. So faculty members in a management school can belong to one of the 4 departments. तो 4 डिपार्टमेंट से एक फैकल्टी मेंबर्स इन किसी भी 4 डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? F&A, M&S, O&Q and B&H. The number of faculty members in F&A, M&S, O&Q and B&H are 9753. तो चलो F&A में 9 है, M&S में 7 है, O&Q में 5 है, B&H में 3 है। ओके, फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकंड, PQ, Professor Praksi, Qureshi, Ramaswamy and Samuel, we can just take PQRS, are 4 members of the school facility who are candidates for the post of the dean of the school. Only one of the candidate was from O&Q. तो एक ही कैंडिडेट था ORQ में से। सो ORQ में से क्या था? एक कैंडिडेट था, एंड अदर देन दैट 4 वेयर नॉन कैंडिडेट। ओके, एक ही कैंडिडेट था। नेक्स्ट, एंड PQRS आर द कैंडिडेट्स। ओके, तो ये डेटा हमें स्टार्टिंग के 2 लाइन से पता चल चुका है। नेक्स्ट, एवरी फैकल्टी मेंबर्स इंक्लूडिंग द 4 कैंडिडेट वोटेड फॉर द पोस्ट। तो मतलब ये सब लोगों ने वोट करा है। किन किन ने? पूरे टीम मेंबर्स ने, और जो 4 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी। इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु वर नॉट कैंडिडेट वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल देखो, हमें OQ का पता है, और Q में कैसा है? एक कैंडिडेट है, 4 नॉन कैंडिडेट है। तो ऑल फैकल्टी मेंबर्स वर नॉन कैंडिडेट, मतलब ये 4 लोगों ने क्या करा है कि सेम कैंडिडेट को वोट करा है। तो ये 4 वोट्स डायरेक्टली इसी एक को जा रहे हैं PQRS में से। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट। तो मैक्सिमम किसी भी डिपार्टमेंट से कितने लोग हो सकते हैं? 2 या तो उससे कम, किसी भी डिपार्टमेंट से। ओके, अ कैंडिडेट कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ, तो कोई भी खुद को वोट नहीं दे सकता। मतलब PQRS हैव बीन वोटेड फॉर ईच एंड अदर, दे कुड नॉट वोट फॉर देमसेल्फ। फैकल्टी मेंबर कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। अभी फैकल्टी मेंबर्स जो भी थे सारे, यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स इन्होंने यूज करा, ये शब्द ध्यान में रखो, बिकॉज ये तुम्हें थोड़ा याद दिलाएगा। बिकॉज दे कुड हैव यूज्ड द टर्म नॉन कैंडिडेट अगर इफ दे हैव टू मेंशन अदर देन द होस्ट हु आर कैंडिडेट, बट दे हैव मेंशन कि फैकल्टी मेंबर्स, मतलब ये जो कैंडिडेट बंदा है ये भी इसको वोट नहीं कर सकता। ओके, मतलब इसमें तो एक ही कैंडिडेट था, सपोज कि किसी दूसरे में 2 कैंडिडेट्स होंगे तो वो कैंडिडेट उसको वोट नहीं कर सकता, उसको दूसरे को भी किसी वोट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल, मैं मेरे फैकल्टी में वोट नहीं डाल रहा हूँ, दूसरे में डाल रहा हूँ। ओके, आफ्टर द इलेक्शन इट वॉज ऑब्जर्व प्रोफेसर प्राक्षी रिसीव 3 वोट्स। तो चलो P को कितने वोट्स मिले? 3। कुरेशी रिसीव 14 वोट्स, Q को मिले हैं 14 वोट्स। प्रोफेसर रामास्वामी रिसीव्ड 6 वोट्स, तो R को मिले हैं 6। एंड प्रोफेसर सैमुअल रिसीव 1 वोट। अरे भाई, सैमुअल को 1 वोट दे दिया, कौन था? चलो लेट्स सी। प्रोफेसर प्राक्षी वोटेड फॉर रामास्वामी,
सो पी वॉज वोटेड फॉर रामस्वामी, तो रामस्वामी के 6 वोट में से एक था पी का और बचे हुए 5 किसी और के थे, 5 फैकल्टी मेंबर्स के थे। प्रोफेसर कुरैशी फॉर प्रोफेसर सैमुअल, तो जो इसको वोट करा था सैमुअल को, एक वोट वो कुरैशी से आया था। प्रोफेसर रामस्वामी फॉर प्रोफेसर कुरैशी, तो रामस्वामी ने इसने करा था, बचे हुए 13 किसी और से थे। एंड प्रोफेसर सैमुअल और प्रोफेसर प्राक्षी, इसने इसको वोट करा था और बचे हुए 2 किसी और को। ओके, तो ये डेटा मिल गया। लेट्स पुट इट इन अ नाइस वे सो दैट विल बी एबल टू सी। तो मैंने ये लिख दिया, देखो ये क्या था, ये हमें फर्स्ट लाइन में गिवन था कि 9 7 5 3 वे आर द फैकल्टी मेंबर्स एंड वी न्यू OQ में से एक कैंडिडेट था, तो नॉन कैंडिडेट कितने हो गए, 4। B एंड H में से हमें पता नहीं। अभी S को कितने वोट्स थे, सिर्फ एक वोट था जो कि Q का था, मतलब इसके अलावा इसको कहीं से भी वोट नहीं मिला। इसको 6, R को 6 वोट्स थे, तो बचे हुए वोट्स 5 इसको कहीं से तो मिल रहे। कुरैशी को क्या था, R ने एक वोट दिया, रिमेनिंग वोट्स दैट कुरैशी रिसीव्ड वर 13। P का क्या था, उसको 3 में से एक वोट S ने दिया और बचे हुए 2 वोट्स है। नाउ वी कैन सी कि कैंडिडेट्स का तो हो गया, बट नॉन कैंडिडेट्स कितने कितने वोट दे सकते हैं। एज वी नो द नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट कैन बी मैक्सिमम 2। सो F&A में से कितने हो सकते हैं नॉन कैंडिडेट, 9 से लेकर 7, बिकॉज उससे ज्यादा नहीं हो सकते। M&S में से क्या हो सकता है कि इधर 7 हो सकते हैं या तो 5, बिकॉज मिनिमम 2। एंड B&H में से कैसे हो सकता है, 3 हो सकता है या तो 1। ओके, नाउ वी कैन सी, चलो P को देखते हैं। P को क्या मिला है, सिर्फ 2 वोट्स मिला है। अभी कौन सी ऐसी फैकल्टी है जो सिर्फ 2 वोट्स दे सकती है। एज वी कैन सी ये तो 9 से 7 के बीच में वेरी कर रहा है, तो F&A तो नहीं है। M&S हो सकती है क्या, M&S भी नहीं है, बिकॉज 7 से 5 हमको सिर्फ 2 वोट चाहिए। O&Q का तो फिक्स है, 4 वोट्स एक्सीड कर जा रहा है। सो P को वोट्स मिले हैं B&H से, कितने वोट्स मिले, 2 वोट मिले। तो फ्रॉम दिस वी कैन टेल कि देयर वाज 1 कैंडिडेट फ्रॉम B&H। ओके, तो अभी B&H का हो गया, इसने किसको वोट दिए थे, एंड P का भी कंप्लीट हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो। नेक्स्ट कुरैशी और R, रामस्वामी। सो Q को कितने वोट्स मिले, 13। तो अभी 13 को हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 9 4 और 8 5, राइट। लेट्स सी कि अगर 9 4, चलो 9 4 तो है, अभी 8 5 एक बार चेक कर लेते। सपोज इसमें 8 अगर ले लिया तो 5 मुझे कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से तो नहीं मिल सकता, तो 5 मुझे यहाँ से मिलेगा। तो अगर 8 और 5 यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे 2 कैंडिडेट आ जाएंगे और यहाँ पे कितना, 1। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो रहे हैं, 1 2 4 5, ये तो एक्सीड कर जा रहा है। दैट मीन्स 8 and 5 can't be possible. So the only possible votes that Q has received would be in the form of 9 and 4. Okay, so 9 and 4 में से वोट्स मिला इसको, that's why ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे अगर 9 वोट्स मिले तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं था, और यहाँ सिर्फ 4 मिले तो एक कैंडिडेट था, तो ये सेटिस्फाइड। तो Q को कौन कौन से डिपार्टमेंट से वोट्स मिले, F&A एंड द अदर डिपार्टमेंट दैट इज O&Q। ओके, नेक्स्ट R का देखते हैं। R को कहाँ से वोट मिला, R को कितने वोट्स मिले, 5। सो वी नो R के पास तो एक ही डिपार्टमेंट है बचा हुआ, दैट इज M&S ने वोट करें। तो कितने वोट्स करे, M&S ने 5, M&S ने 5 वोट करे, दैट इम्प्लाइज कि उसके कितने कैंडिडेट्स थे, 2। सो द कैंडिडेट्स कौन कौन से फैकल्टी से है, M&S से 2 है, O&Q से 1 है, B&H से 1 है। सो लेट्स सी कि ये जो 4 कैंडिडेट्स है वो किस में से हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो F&A में से तो 0 कैंडिडेट था, तो इधर तो कोई भी नहीं है। M&S में से कैसे कि 2 कैंडिडेट्स है, ये 2 कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं, अभी P Q R और S में से वी नो कि R को M&S ने वोट करा था, दैट्स व्हाई R यहाँ पे नहीं हो सकता। सो द रिमेनिंग आर P Q S।
सो पी क्यू एस में से कैसे दो कैंडिडेट्स है, तो वो दो कैंडिडेट कौन कौन से हो सकते हैं, पी क्यू, क्यू एस और पी एस, राइट। तो लेट्स सी कि हमें यहाँ से कोई चीज़ मिल सकती है क्या। सो सपोज अगर पी और क्यू एक ही जगह से, तो पी उल्टा जाता है, पी और क्यू एक ही जगह से, तो क्यू को किसी से वोट पी से नहीं मिला है, पी को भी क्यू से नहीं मिला है, सो ये कंडीशन हो सकती है। क्यू और एस देखते हैं अभी, क्यू और एस। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि क्यू ने वोट करा था एस को, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर वो दोनों एक ही फैकल्टी से हो, तो दैट्स वाई क्यू एंड एस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पी और एस चेक करते हैं, पी और एस। नाउ इन दिस पी एंड एस वी कैन सी कि एस ने पी को वोट करा था, और अगर दोनों एक फैकल्टी में रहे तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। दैट इम्प्लाइज द ओनली कंडीशन दैट इज सेटिस्फाइंग ऑफ एम एंड एस, दैट इज पी क्यू। तो अभी ओवर क्यू में कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ओवर क्यू में कौन से, कि क्यू को वोट मिला था ओवर क्यू से, तो बचे हुए कौन कौन है, पी, आर एंड एस। एंड बी एंड एच कौन सा हो सकता है, पी को वोट मिला है तो रिमेनिंग आर क्यू, आर, एस। और पी और क्यू यहाँ पे हो गया, सो पी और क्यू कट गया, सो आर एस। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन रहे हैं हमारे सामने, दैट इज कि सपोज एम और एस में पी एक बार रहेगा, पी और क्यू, एक बार आर रहेगा तो एस होगा, और जब एस रहेगा तब आर रहेगा। अरे दो कंडीशंस क्या क्या आ गई, कि पी क्यू, आर और एस, ये, या फिर पी क्यू, एस एंड आर। ओके, so let's check what are the questions. The first question, which two candidate can belong to the same department? तो कौन से दो कैंडिडेट्स आ रहे थे हमारे सेम डिपार्टमेंट में से, तो एम एंड एस से दो कैंडिडेट आ रहे थे जो कि है पी और क्यू, और ये हमें फिक्स पता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोफेसर पाकरसी एंड कुरैशी। Second, which of the following can be the number of candidate that Qureshi received from a single department? तो Q को सिंगल डिपार्टमेंट में से कितने वोट मिले, तो लेट्स चेक। Q को क्या था, कंडीशन क्या आई थी, 9 एंड 4, सो एक जगह से 9 मिले थे, एक जगह से 4। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द ओनली आंसर दैट सेटिस्फाइज दैट इज 9। नेक्स्ट, इफ प्रोफेसर सैमुअल बिलोंग्स टू बी एंड एच। ओके, तो हमें गिवन क्या था, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो एम एस ओ क्यू बी एच, एम एंड एस ओ क्यू एंड बी एंड एच। अभी पी और क्यू इसमें से फिक्स था, और आर और एस में से कंफ्यूजन था, राइट। सो नाउ व्हाट दे हैव गिवन इज प्रोफेसर सैमुअल बिलोंग्स टू बी एच, तो एस यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये कह रहे हैं, तो ये पी क्यू तो फिक्स ही है, और अगर एस यहाँ पे बिलोंग करेगा तो ओ एंड क्यू में कौन रहेगा, आर। सो व्हाट आर द स्टेटमेंट दैट दे हैव गिवन, प्रोफेसर पाकरसी बिलोंग्स टू एम एंड एस, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी, प्रोफेसर रामास्वामी बिलोंग्स टू ओ एंड क्यू। हाँ, अगर बी एंड एच एस में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो अगर फर्स्ट पॉइंट हमें दिया नहीं रहता तो हमारा क्या होता, जो स्टेटमेंट 2 था वो फॉल्स होता, बट दे हैव गिवन दैट प्रोफेसर एस बिलोंग्स फ्रॉम बी एंड एच, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम ओ एंड क्यू, कैंडिडेट फ्रॉम ओ एंड क्यू, अभी यहीं पे हमने लिखा था ना, ओ और क्यू का कैसे, आर और एस में से कोई भी, so it's either Ramaswamy or Samuel, option number 2. Okay, next, which of the following statements is or are true? Non-candidates from M and S voted for Qureshi, and non-candidates from F and A voted for Qureshi. तो अभी कुरैशी को वोट कहाँ कहाँ से आया, लेट्स चेक। कुरैशी को वोट मिला एफ एंड ए और ओ एंड क्यू से, तो एफ एंड ए से मिला, एम और एस से नहीं मिला, ओ एंड क्यू से मिला। सो द ओनली स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट फ्रॉम दिस इज स्टेटमेंट बी। ओके, चल, दिस इज वन मोर सेट दैट हैज ऑकर्ड इन
CAT 2023 slot 2. This let's do one thing. Let's do this slot question for Kumba. You guys try. If you weren't able to do it, in next lecture I'll resolve it. Okay? अभी ये क्वेश्चन का बस एक बेसिक ओवरथ्रू हम लोग ले लेते हैं, सीन कर लेते हैं, एंड देन यू गाइस ट्राई, एंड अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई. ओके. सो अंजलि बिपाशा चेत्रा 3 लोग हैं, एंटरटेनमेंट पार्क में गए 4 राइड्स से. तो 3 लोग थे, 4 राइड्स है, R1 R2 R3 R4. ओके. सो ईच राइड लास्ट 1 hour एंड कैन अकोमोडेट 1 विजिटर एट 1 point. ऑल राइड्स बिगिन एट 9 PM एंड मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 5 PM. तो कैसे है, हर राइड एक्सेप्ट फॉर राइड. ओके. सो R1 R2 R4 जो राइड्स है वो कब 9 से 5 बजे तक है, और R3 इज द ओनली राइड जो 1 बजे खत्म हो रही है. नेक्स्ट द टिकट प्राइस. तो ये R1 हो गया, एक से R1 R2 R3 R4 के प्राइसेस है. ईच ऑफ द 3 विजिटर टुक एटलीस्ट 1 राइड and did not necessarily take all rides. तो मतलब कम से कम एक राइड तो करे तीनों में. None of them took the same ride more than once. तो हर एक राइड उन्होंने एक ही बार करे और कम से कम एक राइड करे. The movement time from one ride to another is negligible and a visitor leaves the ride immediately after the completion of the ride. No one takes a break inside the park unless mentioned explicitly. तो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 राइड्स है, R1 R2 R3 R4. उसके प्राइजेस गिवन है 20, 50, 30 एंड 40. ओके. तो ये इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि कम से कम एक राइड करें, और नीचे 4 कंडीशंस है. सो यू गाइस चेक ऑल दिस 4 कंडीशंस एंड सर बेसिक तो मैंने बता दिया, बस बेस्ड अपॉन दिस 4 कंडीशन कौन कौन से राइड पे गया है, कब किधर था, वो कैलकुलेट कर लो एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ओके. विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेस सेशन. आई होप यू लाइक दिस सीरीज. ये सीरीज अभी आगे जाके हुए जैसे जैसे और जो क्वेश्चन जैसे पजल्स का हमने देखे थे कि हर ईयर में मिनिमम 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके, मतलब 10 क्वेश्चंस. देयर वर 2 पैरास व्हिच वर कमिंग. सो विल बी कवरिंग मोर सच क्वेश्चंस व्हिच हैव द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग दिस ईयर एंड विल सॉल्व. ओके. सो लेट्स साइन आउट. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब. बाय बाय.